students, welcome to Pradis Institute of Education. I, your Ayushi Pandey madam, will be taking science and chemistry for you. So let us check the contents. We completed till here, I guess. Yes? Okay, we saw Dalton's atomic theory and we saw modern atomic theory. Today we will be starting with atomic and molecular mass, which is very important as far as your exams are concerned. Okay students? Okay. Then we will be moving to mole concept and molar mass. We will see percentage composition, empirical formula, stoichiometry and stoichiometric calculations. Okay students? Chalo. Let us begin with our lecture for today. Okay, coming to our topic, we will be dealing with atomic mass. Okay students, see, atomic mass, the word itself shows the distinctness, right? कि कितना छोटा हो सकता है mass. Like if we are talking about bulk objects, मान लो ये पेन, इसका भी कुछ mass होगा, isn't it? If we are taking a very few grams of some salt, उसका भी कुछ mass होगा. लेकिन see, जब हम atoms की बात करते हैं, whenever we talk about atoms, what happens is we are talking at a very smaller level, isn't it students? ये तो हो गया bulk. Bulk का will be easily able to measure the mass, but जब atoms की बात आती है, they are so small कि उनका mass measure करना is a challenge in itself, isn't it students? Yes, so let us see कि हम उनका mass कैसे measure करते हैं. Okay, चलो, let's see what is written here. The atomic mass or the mass of an atom is actually very small because atoms are extremely small. Isn't it? See, bulk properties so we know. Bulk of any matter can be measured very easily. Lekin when we are talking about its constituent particles, that are the atoms, which are further divided into electrons, protons and neutrons, उस time पर atomic mass calculate करना was a challenge, right? But somehow we managed, and today we have the concept of atomic mass. Chalo. The present system of atomic masses is based on carbon-12. Very important. This is the hero for today's topic, students. Okay? Yeah. What is written? The present system of atomic masses is based on carbon-12 as the standard. इसको हम क्या मानकर चलते हैं? As a standard. What is carbon-12? See. What is carbon-12 students? It is the isotope, most stable isotope of carbon. Most stable isotope of carbon. Yes, carbon के कितने isotopes हैं? We have C12, we have C13 and we have C14, isn't it students? This is the most stable one. तो इसको हमने क्या मान लिया? Standard. Okay? And has been agreed upon in 1961. Okay? Here carbon-12 is one of the isotopes of carbon and can be represented as 12C. Beta, write it like this. 12C. Okay students? Yes. In this system, 12C is assigned as a mass of exactly 12 atomic mass unit and masses of all other atoms are given relative to this standard. Carbon-12 को हमने क्या माना है? Standard, isn't it? देखो, इसका मतलब क्या है? Carbon-12 को हम क्या standard मान रहे हैं? क्या मैम बोल रही हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. We'll understand with a very easy example. Okay, अभी देखो यहाँ पर, है ना? Right students, 12 or carbon-12 is assigned mass of exactly 12 atomic mass unit and masses of all other atoms, जितने भी atoms हैं, isn't it? उनका mass इसके relative देते हैं. Okay students, चलो.
one atomic mass unit is defined as mass exactly equal to 1/12 of mass of one carbon 12 atom. See, चलो अब समझते हैं कि रिलेटिव का एग्जैक्टली मतलब है क्या, क्या स्टैंडर्ड ले रहे हैं कार्बन 12 को. देखो, लेट्स सी हियर. सी स्टूडेंट्स, सब्जी लेने तो सब लोग गए होंगे, isn't it? क्या होता है, वी हैव वेट्स देयर, वहां पर या तो फिर एक वी हैव अ मीटर दैट मेजर्स, isn't it, द क्वांटिटी. लेकिन यहां पर हम वो वाले की बात नहीं करेंगे, यहां हम बात करेंगे तराजू की. ओके स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट तराजू. देखो क्या होता है, अगर हमने कुछ से पोटैटोज लिए हैं, isn't it? और हमें पता करना है कि इसका मास क्या है. अभी इसका मास हमें पता नहीं है, राइट? और हमें पता करना है इसका मास क्या है. क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट पुटिंग सम वेट्स हियर, isn't it? यहाँ हम कुछ वेट्स रख देंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ बहुत बड़े होंगे, isn't it स्टूडेंट्स? वेट्स रखने लगेंगे दूसरे वाले पैन पर. तो what are we doing? ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम इसको एज अ स्टैंडर्ड मान रहे हैं. जो वेट्स हम यूज कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग दैट एज स्टैंडर्ड. कि चलो 1 kg का वेट रखकर देखते हैं, 2 kg का वेट रखकर देखते हैं. मान लो हमने इतने वेट्स रखे, ये टोटल कुछ 500 ग्राम्स के होंगे, isn't it स्टूडेंट्स? कुछ 100 ग्राम्स का होगा, जस्ट लाइक दैट, यू नो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. तो ये जब टोटल करेंगे 1 kg plus 2 kg, what will we get? 3 kg. And here also the potatoes that are kept are of 3 kg. And ये weights भी 3 kg हैं, isn't it students? तो can't we say क्या हमें इस unknown quantity का mass नहीं पता चल गया? Tell me. क्या हमें इस अननोन क्वांटिटी का, पोटैटोज का, जो हमें मास पहले पता नहीं था, क्या वो हमने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटीज रख कर इसका मास नहीं निकाल लिया? टेल मी, डिडंट वी डू दैट? वी डिड दैट, राइट? तो अब इसी को क्या मानना है? आई होप ये एग्जाम्पल काफी इजी है एंड इससे आपको समझ में आ जाएगा. जो यहां पर हमने वेट्स लिए हैं एज अ स्टैंडर्ड, दिस इज आवर कार्बन 12, ओके. एंड रिलेटिव टू दिस, मान लो ये सारे हमारे क्या हैं, एटम्स हैं. यस स्टूडेंट्स, दीज आर आवर एटम्स, दीज वेट्स आर आवर कार्बन 12 दैट इज टेकन एज स्टैंडर्ड. नाउ यूजिंग दिस as a standard, we are calculating the mass of other atoms. Easy? Can we say that? Can we do like that? We can, isn't it students? Yes? चलो, तो I hope कि कार्बन 12 as a standard जो हमने लिया है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कार्बन 12 हमारा क्या काम कर रहा है? वेट्स का. Yes? वेट्स का. एंड जो अननोन एटम्स है वो क्या है? अननोन क्वांटिटी है. यस स्टूडेंट्स, तो सिंस दिस इज अ नोन क्वांटिटी, इसको बैलेंस करके कैन बी फाइंड आवर अननोन क्वांटिटी जस्ट लाइक वी डिड हियर. सो दैट इज द मीनिंग कि see here, carbon 12 isotope is assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit and masses of all other atoms are given relative to this standard. Clear? I hope it is clear to all of you now. चलो आगे देखते हैं. See, what is written? 1 atomic mass unit is defined. कैसे define करेंगे? 1 atomic mass unit का short form होता है AMU. Atomic, A for atomic, M for mass, U for unit. This is equal to 1/12
the mass of carbon 12 isotope, and this particular figure we can say, or column we can say, is taken as standard. Right, see, one atomic mass unit is defined as the mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon 12 atom, or we can say carbon 12 isotope. Now, let us see the numerical value for 1 AMU. When we proceed to the calculations, or we can say our numerical part, this particular thing is required for converting grams to AMU or AMU to grams, isn't it students? चलो, ये तो atomic हो गया ना. Atomic mass का unit AMU is atomic mass unit. Yes, students. Yes, students. Now, let us check the numerical value. What is given? 1 AMU is equal to 1.66056 into 10 to the power minus 26 grams in grams. Let us see here. Let us check. What is 1 AMU given? 1 AMU is equal to 1.66, you can take, okay, 1.66 into 10 to the power minus 24 in grams. How much is 1 AMU equal to? It is equal to this. Just write it, or write it somewhere, because this is of prime importance. It will be used in your numericals, students, okay. चलो ये लिख लो. Write it down. Yes, written students. चलो, now आगे क्या देखना है? Mass of an atom of hydrogen is equal to इतना. कितना given है? 1.67 into 10 to the power. Here it is like this, beta 10 to the power minus 24. It is given in grams. ठीक है? तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं AMU की वैल्यू? Since grams में given है, तो हमें अगर AMU में वैल्यू चाहिए मास ऑफ हाइड्रोजन की, तो हाउ विल वी डू इट? उसके लिए हमें 1 AMU की न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए, isn't it? See, क्या करेंगे आगे? Mass of an atom of hydrogen is इतना. This is in grams. Yes, students, this is in grams. Now, if we have to convert this particular value to AMU, what are we going to do is, see, mass of an atom of hydrogen, hydrogen का mass कितना है? 1.67. I'm just writing till 2 decimal places into 10 to the power minus 24. This is in grams, students, right? And अगर हमें AMU में चाहिए mass, what are we going to simply do is, we will be dividing it with the value of 1 AMU, that is 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. 1.66 into 10 to the power minus 24 grams, students, alright, and what are we getting? What are we getting? We will simply get 1.0078, or you can simply write as 8 AMU, atomic mass unit. Clear to all of you? क्या किया है हमने? Grams में हमें किसी भी atom का mass अगर given है and we have to convert it to AMU, we want it in AMU, what are we going to simply do is, mass of atom जो भी given है in grams divided by the value for 1 AMU, that is 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. इस value से divide कर देंगे and we will get our answer in AMU, students. Got it? Clear to all of you? चलो, let's see what else is given. See here. Similarly, the mass of oxygen atom would be 15.995 AMU at present. Okay, students, चलो ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन का भी या कार्बन का किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करेंगे, if you want it in AMU, it is given in grams, and if you want it in AMU,
what are we simply going to do is divide it by 1.66 into 10 to the power minus 24 grams and we'll get our answer in AMU for that particular atom. Okay students, yes, clear? चलो now आगे देखते हैं. At present AMU has been replaced by U, which is known as यूनिफाइड मास. AMU को किससे रिप्लेस कर दिया है? AMU को किससे रिप्लेस किया है? AMU is simply replaced by U, which means unified mass. Okay, AMU को अभी प्रेजेंट में जो हम टर्म यूज कर रहे हैं या जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, दैट इज यूनिफाइड मास एंड स्मॉलर टर्म्स में वी से इट एज यू इन शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, AMU, यू जो है वो AMU ही है, कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, सो अगर हम हाइड्रोजन का मास पहले लिखते थे तो 1.008 यू AMU लिखते हैं स्टूडेंट्स. पहले जब लिखते थे तो वी राइट इट एज 1.008 AMU, but as per today's convention, what are we writing? 1.008 U. That is units. Clear to all of you? चलो, I hope it is clear students. आगे देखते हैं what is there in the next slide. See. Okay, this is similar thing. We know mass of an atom of hydrogen is how much? 1.67 into 10 to the power minus c. इसको कैसे लिखेंगे हम सिंपलर फॉर्म्स में? 10 to the power minus 24. Okay, students, grams. This means to the power, exponential power. It is this 1 AMU इतना है, 1 AMU कितना है? This much. And mass of hydrogen atom from grams to U. See again, U is what? कंफ्यूज नहीं होना है. U is what? AMU. वही कर रहे हैं जो पहले किया था. ओके, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ग्राम्स टू U अगर हमें कन्वर्ट करना है, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर सिंपली डिवाइडिंग दिस ग्राम वैल्यू दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस. Mass of hydrogen in grams divided by 1.66056 into 10 to the power minus 24. This is the value of 1 AMU in grams students. है ना? And we are getting this. इसी को हम आज क्या लिख रहे हैं? 1.0078 units. Clear to all of you? चलो आगे देखते हैं what is there. Mass of hydrogen atom from U to G. अब हमें कन्वर्जन किस चीज का करना है? AMU to G. हमने कन्वर्जन किसका देखा था पहले? We saw for grams to U. अब हम किसका देखेंगे स्टूडेंट्स? अब हम कन्वर्जन देखेंगे UNIFIED, यूनिफाइड मास टू ग्राम्स या ग्राम एटॉमिक मास, जो भी बोलो. ठीक है, तो U to G अब हम देखेंगे. व्हाट इज दिस? सिंपली U to G. ये कन्वर्जन हम देखेंगे. इसमें क्या किया था हमने? डिवाइड कर दिया था जो भी गिवन वैल्यू थी, गिवन वैल्यू को डिवाइड कर दिया था 1 AMU की ग्राम वैल्यू से, दैट इज 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24. इजंट इट? किया था या नहीं किया था? इसमें हम क्या करेंगे? जो भी वैल्यू गिवन होगी, सी हियर, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पर डिवाइड किया था, यहाँ पर ग्राम्स टू यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया था इस वैल्यू से. नाउ यूनिट्स टू ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए what are we doing? We are simply multiplying the given value multiplied by 1.66 into 10 to the power minus 24. What are we doing? We are simply multiplying. क्लियर? आगे देखते हैं अभी कैसे क्या करना है. आई होप दिस मच इज क्लियर स्टूडेंट्स. सी, इसको एक फॉर्मेट में बना लो कि ग्राम से
U में कन्वर्ट करेंगे. What is U? Unified mass, isn't it? ग्राम मास को यूनिफाइड मास में चाहिए हमें. मास ऑफ किसी भी एटम का मास हमें ग्राम्स में दिया है, उसको हमें U टर्म्स में चाहिए. तो what are we doing? We are dividing by 1.66 into 10 to the power minus 24. What is 1.66 into 10 to the power minus 24 grams? It is the value of 1 AMU in grams. देखा था 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24. Yes, देखा था. अब एक तो फॉर्मेट ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा कि U to G कन्वर्ट करना है. U to G कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. We are multiplying the given value with 1.66 into 10 to the power minus 24. Clear to all of you? Easy, I guess. चलो देखते हैं आगे. आगे what is there? See students here. Mass of hydrogen atom from U to G convert करना है, AMU to G. Now 1.008 units ही तो होता है इसका mass, isn't it? So 1.008 units को हमें किस में convert करना है? grams में. Units को grams में convert करना है. क्या करेंगे? ये जो given value है in units, इसको किससे multiply कर देंगे? We'll multiply it with this 1.66 into 10 to the power minus 24. देखो 1.008 units को हमने multiply किया है 1.66 into 10 to the power minus 24 G से. What are we getting, students? What are we getting? We are getting this value, और broadly लिख लो 2 into 10 to the power minus 23 grams. I just rounded off, okay? This we are getting in grams value here. Clear to all of you? Clear to all of you? I hope yes it is. Yes. Similarly, what is given here? Mass of carbon atom from U to G. Again U to G करना है. क्या करेंगे? AMU में वैल्यू पता है कार्बन एटम की. What is it? 12 यूनिट्स मान लो. Simply 12 यूनिट्स. इसको हमें कन्वर्ट करना है ग्राम्स में. तो what will we do? 12 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.66 into 10 to the power minus 24 grams से. What will we get, students? This value. Okay? Yes, students? Yes? Okay, so just check here. Students, make a correction here. यहाँ पर ये जो value है, okay, this will be 1.67, isn't it? पहले जब grams में हम value देख रहे थे, हाइड्रोजन की कितनी थी? It was 1.67. See, mass of an atom of hydrogen 1.67 into 10 to the power minus 24. तो यहाँ पर क्या आएगा? 1.67 into 10 to the power minus 24 grams. Students, ये just यहाँ से copy paste हो गया है. It is just a printing mistake. सो करेक्शन कर लो. देखो मैं फिर से बता दे रही हूँ. यहाँ तक तो सब क्लियर है. इसका जो आंसर आएगा, सिंपली यू हैव टू चेंज दिस. इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो क्या आएगा? हाइड्रोजन एटम का मास ऑफ हाइड्रोजन एटम यूनिट से ग्राम्स में कर रहे हैं ना, तो ग्राम्स में हमने मास कितना देखा था? इतना. तो ये जस्ट दिस इज अ कॉपी पेस्ट. You can write it or correct it as 1.67 into 10 to the power minus 24 grams. Okay? All of you? Clear? चलो आगे देखते हैं. What is there? I hope this much is clear to all of you. Grams to U conversion and U to G. AMU को grams में कैसे convert करना है? Divide कर देंगे 1.66. Okay? And what else? U को G में कैसे convert करना है? Simply given value जो भी है, U में जो भी value given है, उसको हम multiply कर देंगे. किससे? This value. Okay, I hope it is clear to all of you now. 2-3 बार repeat कर दिया है मैंने. Now, let us see what is average atomic mass. Let us see what is average atomic mass, students. चलो देखते हैं. See, average का मतलब पता है? कैसे निकालते हैं average? Average किन चीज़ों का निकालते हैं हम?
एवरेज हम एग्जैक्टली निकालते किस चीज़ का है? 2-3 क्वांटिटीज गिवन है, इजंट इट? 2-3 क्वांटिटीज गिवन है, उनकी वैल्यू हमें गिवन है, हमें एक सिंगल वैल्यू चाहिए, तो व्हाट डू वी डू इज उसका एवरेज निकाल लेते हैं या मीन निकाल लेते हैं, isn't it? देखो क्या होता है, अगर हमें मार्क्स मिले हैं से आउट ऑफ 20 वी आर गेटिंग 18, 19, 18, 19 लाइक दैट, है ना, और हमें एवरेज निकालना है। सी 4 सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं, तो क्या करेंगे, टोटल जो भी टोटल मार्क्स होंगे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो एवरेज निकाल लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी वही करना है। एटॉमिक मास, अब आप बोलोगे कि एटॉमिक मास हम सेम एलिमेंट के लिए तो सेम होगा, दिस विल बी योर क्वेरी स्टूडेंट्स की सेम एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास विल बी सेम, इजंट इट? आएगा ना ऐसे दिमाग में, मैम एलिमेंट तो सेम है तो एटॉमिक मास क्यों डिफरेंट होगा? अलग अलग वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है एटॉमिक मास की। क्या पॉसिबल है मैम वैल्यू? आई विल से यस पॉसिबल है, आई विल से यस इट इज पॉसिबल स्टूडेंट्स। व्हाई? बिकॉज हमने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का एक करेक्शन देखा था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला गया था कि जो सेम एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, उनके मासेस भी सेम रहेंगे, ओके उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, वो रिएक्शन सेम शो करेंगे, उनके मासेस भी सेम रहेंगे, सिंस दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। But this particular thing is not true, beta. This particular thing is not true for the elements as per the modern atomic theory. मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से ये स्टेटमेंट या ये कहना गलत है कि सेम एलिमेंट के एटम्स हैं तो उनके मासेस भी सेम होंगे। क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते बेटा? सी, इसीलिए नहीं हो सकते क्योंकि एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हमें मिलते हैं। एंड व्हाट आर आइसोटोप्स? व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर द स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? अगर किसी स्पीशीज का एटॉमिक नंबर सेम है मतलब वो सेम एलिमेंट को बिलोंग कर रहे हैं। आई एम सेइंग दिस इज सोडियम 11, atomic number is 11, again another atom of sodium 11, लेकिन अगर इनका मास नंबर डिफरेंट है तो what will be they called? They will be called as isotopes. This is I am just telling it for example, okay? Just example. मान लो ये सोडियम नहीं है, सोडियम के आइसोटोप्स we did not discover. देखो, मान लो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के तो आइसोटोप्स है ना हमारे पास। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर अगर हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ 2 है, तो दिस विल बी स्टूडेंट्स, दिस विल बी अपना नॉर्मल हाइड्रोजन, वी कैन से yes, this is also called as a proton. Now here this will be deuterium and similarly एक और अगर हम लिखें 1 and 3, atomic number same है 1, mass number is 3. What is this tritium? This is a radioactive isotope of hydrogen students, isn't it? Tell me मैं सही बोल रही हूँ या नहीं? तो this is what I am explaining. देखो यहाँ पर, check it out here. This is the atomic number. Atomic number जब भी species का same होता है, they are the species of same elements. Yes. तो since यहाँ पर atomic number same है, these will be isotopes. What are the isotopes? Isotopes are the species जिनका atomic number same होता है students, लेकिन mass number can be different. Yes, and what about those? What about species that have the vice versa condition? वो अलग होते हैं, isobars होते हैं। उनके केस में हम average atomic mass calculate नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका तो mass number same होता है ना? Species जिनका mass number same है, mass number same, yes, and atomic number different. Atomic number different हो गया तो species ही change हो जाएगी, species ही change हो जाएगी, isn't it students? Atom element ही change हो जाएगा। तो इनका तो mass number same है, तो इसमें जब same ही है तो इसमें क्या average निकालोगे? 12 plus 12 plus 12, 12 plus 12 plus 12 divided by 3. How many? 3 है ना? तो what are we getting?
36. Okay, I am writing it here. We are getting 36 इन तीनों का प्लस अपॉन 3. What are we getting? 12 again. तो कोई मतलब हुआ, कोई मतलब निकला? तो सेम स्पीशीज का एवरेज तो सेम ही मिलेगा हमको. Isn't it? Isn't it students? तो एवरेज हम निकालते किसका है? डिफरेंट स्पीशीज का. यस, डिफरेंट स्पीशीज मतलब क्या होगा? जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा स्टूडेंट्स. डिफरेंट एटॉमिक मास. ये किस केस में पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल इन द केस ऑफ आइसोटोप्स. किसके केस में पॉसिबल है ये? दिस इज पॉसिबल इन द केस ऑफ आइसोटोप्स. चलो, ओके ओके, यहां तक तो आई गेस क्लियर है सबको कि हम एवरेज एटॉमिक मास किसका निकालते हैं. एवरेज किसका निकालेंगे? डिफरेंट स्पीशीज का निकालेंगे. Isn't it? डिफरेंट मास नंबर जिसका होगा उसी का तो निकालेंगे. और डिफरेंट मास नंबर होता क्या है? किसका है? डिफरेंट एटॉमिक मास. द एटॉमिक मास इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट. है ना? देखो, अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं Na, दिस इज सोडियम. ओके, ये 11 ऊपर लिखा है, 23 नीचे लिखा है बेटा. तो ये जो टर्म है, व्हाट इज दिस? दिस इज आवर एटॉमिक नंबर that is represented by Z, and this particular 23 is our mass number. है ना स्टूडेंट्स? मास नंबर होता है ये. इसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं, क्योंकि ये एक एटम का मास है. एक एटम का मास है. अगर मैं बोलूं बेटा Na के 2 एटम्स हैं, Na के 2 एटम्स हैं, तो इसका मास क्या हो जाएगा? 2 into what is the mass for one atom? It is 23. Yes, तो क्या हो जाएगा? 46 will be the mass of 2 atoms. तो ये atomic mass है students. Atomic mass है single atom का mass. Okay? Yes? Okay, I hope it is clear now. चलो आगे देखते हैं. आगे देखते हैं बेटा. See, तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया कि एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करते हैं फॉर द स्पीशीज जिनके पास एटॉमिक मास डिफरेंट होता है. सेम स्पीशीज का कैलकुलेट नहीं कर सकते. मैंने बताया था 12 + 12 + 12 डिवाइडेड बाय 3 सेम मिलेगा. कुछ अलग मिला क्या हमको? नहीं, है ना? तो अगर देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, वी हैव हाइड्रोजन का एक आइसोटोप, हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप, हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप. नाउ सच स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटम सेम है, लेकिन क्या है? मास नंबर डिफरेंट है. तो इन्हीं का हम क्या निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास. क्लियर? अब आगे देखते हैं. आगे व्हाट इज रिटन? लेट अस चेक आउट. See, many naturally occurring elements exist as more than one isotope. See, yes, देखें, बहुत सारे isotopes exist करते हैं same element के. When we take into account the existence of these isotopes and their relative abundance, स्टार मार्क कर लो. कैलकुलेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि abundance कितनी है. Relative abundance मतलब कि किस दर से they are present, या percentage occurrence, isn't it? कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है. ओके स्टूडेंट्स, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट कैन बी कंप्यूटेड. क्या पता होनी चाहिए? 2 चीजें पता होनी चाहिए. वी टेक इनटू अकाउंट द एग्जिस्टेंस. एक तो हमें आइसोटोप्स पता होना चाहिए, दूसरी चीज हमें उनका रिलेटिव अबंडेंस पता होना चाहिए फॉर calculating what? For calculating what, students? For calculating the average atomic mass what are we supposed to know? हमें पता होना चाहिए आइसोटोप्स, क्योंकि इन्हीं में हमें डिफरेंट
क्या मिलेंगे? एटॉमिक मासेस जिनका हम एवरेज निकाल सकते हैं एंड वी शुड नो देयर परसेंटेज अक्रेंस, या फिर कह लो रिलेटिव अबंडेंस, एक ही बात है, परसेंटेज अक्रेंस कह लो या रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है. देन वी कैन कैलकुलेट देयर एवरेज एटॉमिक मास. ओके स्टूडेंट्स, चलो. नाउ व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. क्या बोला है? सेम एलिमेंट. हाइड्रोजन का देख रहे थे ना, हाइड्रोजन 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 सेम एलिमेंट है, having different atomic masses but same atomic number and its identical properties. ठीक है, देखो क्या बोला है? Different atomic masses 1, 2 and 3 but same atomic number. Atomic number same है. क्लियर? मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ ही जाए कि यस, व्हाट आर आइसोटोप्स. आइसोटोप्स या एवरेज एटॉमिक मास किसके केसेस में कैलकुलेट करते हैं? आइसोटोप्स के केसेस में कैलकुलेट करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें डिफरेंट एटॉमिक मासेस देखे जाते हैं एंड दे आर दी सेम स्पीशीज. हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, कार्बन कार्बन कार्बन. देखो कार्बन के केस में क्या होगा? कार्बन के केस में वी नो 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. Isn't it students? Yes. तो क्या है? एटम तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है. therefore it is known as what, or these species are known as the isotopes of carbon. yes. चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है? let us check out. चलो, for example there are 2 isotopes of chlorine. okay, क्लोरीन के भी बेटा 2 आइसोटोप्स होते हैं. क्लोरीन एटम सेम है, yes, एटम सेम है, एलिमेंट सेम है, वी कैन से. एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17. यस, दोनों के लिए एटॉमिक नंबर सेम होगा क्योंकि दैट इज द कंडीशन ऑफ आइसोटोप्स कि वी विल बी गेटिंग द एटॉमिक नंबर एज सेम, राइट? यस स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट विल बी द मास नंबर? एक का 35 है, एक का वी हैव 37, है ना? एक का 35 है, 37 है. ये जो हमारे एटॉमिक मासेस हैं ये क्या हो गए? डिफरेंट हो गए. यस. Yes students, now there are 2 isotopes of chlorine. ये हमने 2 isotopes देख लिए. Atomic number for both of them is 17, है ना? But their atomic masses are 35 and 37 respectively. 35 and 37. Yes, the relative atomic masses of each isotopes is known as the isotopic mass. ठीक है, चलो. The 2 isotopes occur in the ratio 3:1. Occurrence बता दी हमें. The 2 isotopes occur in the ratio 3:1. Very important students. इसको देखो सब लोग इसको देखेंगे. The 2 isotopes are in the ratio of 3:1. इससे हम फिर इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे आगे चल के. ओके, तो हमारे पास क्या हो गया? एटॉमिक मासेस हो गए और हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस हो गई, दैट इज 3:1. ओके. Now, therefore, atomic mass of chlorine is average of these 2 atomic masses. कैसे calculate करेंगे? Let's check out. See here. See, atomic mass is equal to summation of fractional abundance into isotopic mass upon total isotopes. क्या है इसका मतलब? अगर हमें क्लोरीन का निकालना है तो what will we do? देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? 35 और 37 हमारे पास 2 एटॉमिक मासेस हैं. इनकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है? 3 है स्टूडेंट्स एंड 1 है. यस, तो हाउ कैन वी राइट दिस? फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज एटॉमिक मास वी विल से 35 into 3, मतलब इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको जो भी मास है उसको उसकी रिलेटिव अबंडेंस से या परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है. प्लस क्या करते हैं एवरेज के लिए? प्लस this will be in one bracket and this will be 37 into 1. Yes students, upon 2 isotopes हैं divided by 2. Clear to all of you? See, total isotopes divided by the total isotopes. Total isotopes 2 हो गए and summation मतलब कि जो भी isotopes हैं उनका sum होगा. summation of किसका होगा? fractional abundance into isotopic mass. आइसोटोपिक मास ये है, फ्रैक्शनल अबंडेंस कितनी है? 3 है इसकी, 1 है इसकी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप. यस. फिर से बताना है क्या?
देखो मैं एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ. एटॉमिक मास, ये एवरेज एटॉमिक मास है, ये एवरेज एटॉमिक मास है जो हम क्लोरीन के लिए निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स. यस, सी होता क्या है, हमने क्या लिया, समेशन लेना है दोनों का सम लेना है. जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनके बीच में हम ऐड करते जाएंगे. आइसोटोपिक मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस, आइसोटोपिक मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइसोटोप्स. कार्बन के केस में 3 है तो अपॉन 3 कर देंगे. क्लियर? सो जब इससे हम निकालेंगे तो व्हाट विल वी गेट, वी विल बी गेटिंग 35.5 as the average atomic mass for chlorine atom. Okay, this is what we'll get as the average atomic mass for chlorine atom. देखो chlorine atomic mass 17, चलो यहाँ लिख दे रही हूँ, chlorine atomic number 17 and atomic mass as 35.5. Okay, yes. And one very important information is this कि जो हमारा periodic table है students, जो हमारा periodic table है उसमें what is written, वहाँ पर average atomic masses लिखे होते हैं elements के. Okay? जिस भी element के isotopes available हैं उनके average atomic masses लिखे होंगे. Clear to all of you? चलो आगे देखते हैं. Okay, so we have the concept of molecular mass. आगे here देखो we have the periodic table. Yes, यहाँ पर कार्बन का यहाँ पर बेटा average atomic mass written है. देखो coming to chlorine, this is the atomic number and here it is 34.45 या फिर round off करके 35.5. तो periodic table में see, in the periodic table, the atomic mass mentioned for different elements actually represent their average atomic masses. What is represented? Average atomic masses written होता है. ऐसा नहीं होता है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक का 17, ये 17 इसका atomic number है स्टूडेंट्स, यहाँ पर we have 35, यहाँ पर we have 37, तो कोई एक का लिख दिया. क्या ऐसा हुआ है यहाँ पर? नहीं. यहाँ हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या मेंशन्ड होते हैं? एवरेज एटॉमिक मासेस. यस स्टूडेंट्स? ओके, सो आई होप, सी हियर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, बट दिस वन इज द एवरेज एटॉमिक मास. यस स्टूडेंट्स? सो चलो, आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको. एनी डाउट्स अप टिल हियर यू कैन लेट मी नो. ओके स्टूडेंट्स, चलो. So for now or for today, what did we cover? We covered atomic mass and average atomic mass. Okay, and in the next class we'll be seeing formula mass, molecular mass, क्या होता है ये, किन species के लिए होता है ये. Okay, ये सब हम अगली क्लास में देखेंगे. For now you can revise this much and if you have any problem just let me know. So I hope it is clear, concepts are clear to all of you. Do revise them, do calculate the conversions for AMU to G and G to AMU. Okay students, chalo. That's all for today's lecture. We'll continue with the same topic in our next lecture. For further updates, do like, share and subscribe to our YouTube channel.